Hello everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will discuss the second part of the story of Saptarishis. But before discussing the second part, we should discuss what we have discussed till now. So first, we had get to know that there were some rishis, and the number of rishis were 7, and the group of rishis were known as Saptarishis, and the rishis were living in harmony with the wife of Vashisht, along with their servant Gunda and her husband Pashushka, and they are making sacrifices and practicing austerities. And the same time, when they were living, a drastic drought afflicted the land, and the people started starving due to hunger. And the same would be happened with Saptarishis, and they also started wandering due to hunger. As the true saint, they were not able to eat anything, because the true saint accept only those things which would be given to at the time of sacrifice, or it would be roots fruits from the forest. यानी कि सीधी सी बात ये थी कि 7 ऋषि रह रहे थे, और वो वशिष्ठ उनमें से एक थे। वो अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, और उनकी एक सर्वेंट थी गुंडा, और उसका जो पति था पशुष्का। ये सब साथ में रह रहे थे। उसी समय एक क्या पड़ा, एक सूखा पड़ा, जिसमें सभी लोग परेशान हो गए, भूख से मरने लगे। और वो सप्त ऋषि के साथ भी ये होने लगा, क्योंकि अब वो बहुत ही ट्रू सेंट थे। तो जब वो ट्रू सेंट थे, तो वो ऐसे तो कुछ भी ले नहीं सकते। वो सिर्फ वही ले सकते हैं जो सेक्रीफाइस, यानी कि किसी पूजा पाठ के बाद उनको दान में दे दिया जाए, या फिर वो जंगल से फल या फूल लाकर खाने लगे। And when they were wandering in the search of food, suddenly a man appeared before them. तो उनके सामने क्या, एक इंसान आ गया। And the man was offering everything which the rishis were wanted. वो सभी चीजें दे रहा था जो ऋषि को जरूरत थी। But they refused the offer of the man. उन्होंने मैन का जो ऑफर था वो रिफ्यूज कर दिया। क्यों? Because the merits, the sacrifices which they had been performed would be all go in vain. वो सभी बेकार हो सकते थे। क्यों? अगर वो उस आदमी से क्या ले लेते जो वो दे रहा था। And the rishis were left the place without making any temptness. और उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी जहाँ वो आदमी था, और वो दूसरी जगह चले गए। तो दिस इज द लास्ट स्टोरी, एंड नाउ वी विल डिस्कस वो आदमी कौन था, who was the man, and why was he offering riches to the Saptarishis. So to know this, we will go through with part 2 of this chapter. देखिए, what is written here? The man was King Vrishtarbi's messenger. तो man कौन था? वृषतर्भी का मैसेंजर था, दूत था। The king was not pleased to learn that his gifts were refused. जब राजा को ये पता चला, प्लीज्ड मतलब वो खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे जब पता चला कि उसने जो गिफ्ट्स दिए वो सप्त ऋषियों ने रिफ्यूज कर दिए, लेने से मना कर दिया। ही सेंट फॉर हिज मिनिस्टर्स, और उसने अपने मिनिस्टर्स से क्या बोला, प्लग द राइपेस्ट फिग्स, जो सबसे पके हुए फिग्स हैं, अंजीर हैं, आप उनको तोड़ो। फ्रॉम द पैलेस गार्डन, कहाँ से? पैलेस यानी महल के अंदर जो गार्डन था वहां से। स्टफ देम विद ग्रेन्स ऑफ और गोल्ड, और उनमें क्या भरो, सोना भरो। एंड प्रेजेंट देम टू द ग्रेट वंस, और फिर उन ऋषिस के सामने ले जाओ। तो व्हाट वी नो हियर, क्या हमें पता चला? द किंग बिकम वेरी एनॉयड बाय नोइंग द ऋषिस refused the offer given by him, and he ordered his ministers to stuff the figs with gold or grains to again offer the rishis. Okay, and the next line is, the king's minister took the king's, और जो किंग के मिनिस्टर थे, took the king's gift to the rishis. वो जो राइपेस्ट फिग्स के अंदर उन्होंने स्टफिंग करी थी गोल्ड की, उसको ऋषिस के पास ले गए। who brightened up at the sight of the juicy fruits. और ऋषि क्या हो गए, उन्होंने सोचा ये फ्रूट्स हैं, फिग्स हैं, तो वो बहुत खुश हो गए कि अब हमें कुछ खाने को मिलेगा, जूसी फ्रूट्स। बट अत्रि, one of the Saptarishis, stopped them from accepting the gift and glared angrily at the king's men. पर अत्रि जो उनमें से एक थे, उन्होंने बाकी ऋषिस को रोका वो लेने से। and glared, देखना, एक टक देखना, see, angrily, देखने लगे, at the king's men, किसके आदमियों पे? राजा के आदमियों पे देखने लगे। और एंड व्हाट वी गेट टू नो हियर, क्या पता चलता है कि जो राजा था
उसने कुछ लोगों को भेजा था वो गिफ्ट लेके, एंड अगेन ऋषिज रिफ्यूज द सेम गिफ्ट्स, एंड अत्रि मेक ऑल द ऋषिज अवेयर अबाउट द स्टफिंग इन द figs. Okay, and what is written in next stanza? Do you think we are a bunch of idiots? He asked acidly. तो अत्रि ने क्या बोला? क्या आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग इडियट हैं, हम लोग मूर्ख हैं? Acidly means एंगर से, गुस्से से, कड़वाहट से. ओके, those figs are stuffed with gold. वो जो figs हैं वो गोल्ड से स्टफ्ड हैं. We may be starving but our wits haven't gone wandering. हम भूखे जरूर हैं बट आर विट मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि नहीं कहीं चली गई है, बुद्धि अभी भी हमारे पास है. रिटर्न दीज फिक्स टू योर किंग विद आर कॉम्प्लीमेंट्स. और ये जो आपके फिक्स हैं रिटर्न कर दो आप अपने किंग को हमारे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, हमारी शुभकामनाओं के साथ. वी डोंट नीड दीज फिक्स. सो क्या पता चला कि अत्रि रिटर्न ऑल द फिक्स स्टफ्ड विद गोल्ड टू द किंग मैन and said and told them to return the same figs with their compliment. What is written in next stanza? Vashishta was gentler. वशिष्ठ जो थे वो थोड़े नम्र थे. We lose all our merits if we accept even one gold coin. तो उन्होंने क्या बोला कि हम अपनी सारी मेरिट्स खो देंगे, जितना हमने जब तक किया है वो सब हम खो देंगे अगर हम आपका एक गोल्ड कॉइन भी ले लेते हैं. हेवन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अस देन हंगर. हमारे लिए जो हेवन है, जो स्वर्ग की प्राप्ति है, वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ हंगर. He said the king's men could not tempt even Gunda or her husband. Now, what is written here? The king men also were also not able to tempt Gunda and Pashushka. Why? Because they were also following austerities. यानी कि जो उनके सेवक भी थे उनको भी वो लोग कोई भी लालच नहीं दे पाए. Defeated, they returned to the palace and narrated the whole episode to the king. Finally, when they are unable to tempt all the rishis and Gunda and Pashushka, they returned to the palace and told whole story to the king, how the Sapt rishis, especially Atri and Vashishta, again rejected the offers given by the king. तो उन्होंने वहाँ पे जाके फिर से बताया कि कैसे अत्रि और वशिष्ठा ने आपके ये फिक्स भी लेने से मना कर दिया. द किंग वॉज ग्रीवियसली ऑफेंडेड बाय द ऋषिज कॉन्स्टेंट रिफ्यूजल ऑफ हिज गिफ्ट्स. अब क्या हुआ कि किंग ग्रीवियसली यानी बहुत गुस्सा हो गया, ऑफेंडेड द ऋषिज कॉन्स्टेंट रिफ्यूजल ऑफ द गिफ्ट. क्यों? क्योंकि किंग वॉज थिंकिंग दैट ऋषिज वर इंसल्टिंग द किंग, कि वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हम बार बार हमारे गिफ्ट्स को रिफ्यूज कर रहे हैं. लॉकिंग हिमसेल्फ अप इन हिज चैम्बर. उसने उसको अपने कमरे में बंद कर लिया, मतलब अपना कमरा बंद कर लिया. ही परफॉर्म्ड अ सैक्रिफाइस, और उसने एक यज्ञ किया. एंड आउट ऑफ द फायरसम डेमोनिस इमर्ज्ड. और फिर आग में से एक बहुत फायरसम मतलब डेंजरस, फियरसम, सॉरी दिस इज नॉट फायरसम, दिस इज फियरसम. एक बहुत ही फ्राइटनिंग डेमोनिस यानी कि असुर, जो असुर का फीमेल होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं दैत्य का जो फीमेल होता है वो बाहर निकली. So what we get to know here, after constant refusal of rishis, king became very angry because king was thinking the rishis were constantly insulting him, and he performed a sacrifice, and from the same fire of the sacrifice a demoness was appeared, and the king said something to the demoness. And now we will see what are the words of the king. The demoness bowed before her creator. What do you want me to do? She asked. अब क्योंकि राजा ने ही उसको क्रिएट किया था तो वो उसके सामने बो हुई. बो मीन्स झुकना, बो डाउन मीन्स झुकना. बो डाउन बिफोर हर क्रिएटर, वो अपने क्रिएटर के सामने झुकी. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? उसने पूछा आप मुझसे क्या चाहते हो? What राजा said now? The king said, follow the Sapt rishis and their group. उनके ग्रुप को आप फॉलो करो. They are wandering around in search of food. वो खाने की तलाश में घूम रहे हैं. एंड द ओनली प्लेस, और वो एक इकलौता जगह है जहाँ पे उनको खाना मिलेगा. द ओनली प्लेस वेयर दे विल फाइंड इट इज द लेक. और उनको कहाँ पे मिलेगा? लेक में ही मिलेगा, नदी, एक नहर में ही मिलेगा. फॉलो देम देयर, वहाँ तक उन्हें फॉलो करो. एंड बिकम द गार्डियन ऑफ द लेक, और लेक के गार्डियन बन जाओ. एंड व्हेन दे सीम्स टू प्लक द लोटस स्टाक्स, और जब वो लोटस के स्टाक प्लक करने आए, आस्क देम द मीनिंग ऑफ दियर नेम, तो उनसे उनके नाम की मीनिंग पूछो. एंड स्टाक का मतलब क्या होता है? जो ऐसे वाला पार्ट होता है ना, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज स्टाक. एंड वंस यू हैव दियर आंसर्स, और एक बार अगर तुम्हें उनका आंसर मिल जाए, यू विल बी एबल टू ओवरपावर एंड डिस्ट्रॉय देम. तो तुम उनको ओवरपावर, तुम उनको खत्म कर सकते हो, तुम उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हो. तो दीज आर द वर्ड्स ऑफ
king. So what we get to know here, the king told Demonis to follow the Saptarishis and told about the place where they could be go in search of food, and give a set of instruction to ask them about meaning of their name. Okay, now what is written in next stanza, but make sure you get meanings. पर ये याद रखना कि तुमको मीनिंग्स तो मिल जाएंगी, पर ये इंपॉर्टेंट है कि जब तुम पहली बार पूछो तभी मिल जाए. द फर्स्ट टाइम यू आस्क यू हैव बट वन चांस विद ईच, यानी कि तुम सबसे एक ही बार पूछ सकती हो. द किंग कंक्लूडेड. द डेमोनिस फ्लू ऑफ टू द लेक एंड ले इन वेट फॉर द ऋषिज, और वो लेक की तरफ चली गई और ऋषियों का इंतजार करने लगी. तो what we get to know here, the Demonis got the instructions from the king and then flew off to the lake and started waiting for the rishis. So it's revision time. Who was the man whose offer the Saptarishis had refused? The man was the messenger of the king whose offer Saptarishis refused. What did King Vrishtarbi ask his ministers? The King Vrishtarbi asked his ministers to stuff the ripest fig from the palace garden, and the same should be gifted to the rishis. How would the Demonis be able to overpower the rishis? So Demonis had to go to the lake and ask the meanings of the names of the Saptarishis one by one, and then once he got all the meanings of their names, she would be able to overpower and destroy the Saptarishis. So this is the second part of this chapter, and again this is still thrilling because हमें नहीं पता अब आगे क्या होगा, वो कैसे क्वेश्चन पूछेगी और क्या क्या होगा. तो in next session we will get about the same thing कि क्या होता है. Until then, enjoy this session, and one more thing, if you like this video, don't forget to share, subscribe and watch Digital Kaksha. Thank you.